Okay, let's we start with our chapter number 9. We have discussed up to uh, page number 145. Now we will move to the page number 146. The page number 146 means topic number 9.2. Topic 9.2 means chapter number 9 and topic number 2. That 9.2 is primary and secondary metabolites. Primary and secondary metabolites. Look here. First we will try to understand what is it. The most exciting aspects of the chemistry deals with the isolating thousands of compound. Look, this is the basically related with the pure chemistry. In this chemistry portion, not biological, in chemistry portion there is a one section where various methods are used to separate the different kinds and of the molecules, maybe organic, maybe inorganic, maybe of the higher molecular weight, maybe of the lower molecular weight, or maybe of the inorganic and ions, metal ions, non-metals, that all other thing. But here we want to study that these isolating thousands of compounds, these all compounds are definitely present in living organism in cell. Cells are also made up of these all compounds, small and big. They may be small or big. From living organism, thousands of compounds, small or big, from the living organism. Pure chemistry deals with the isolation techniques, and those techniques are used to isolate these small or big, organic, inorganic, from the living organism, determining their structure and if possible synthesizing them too. और उसके बाद में क्या करना है? Then after determining their structure, उसके structure को determine करना है. After determining, if it found it is useful for the living organism, for the human beings, or for the other purposes, if possible, we synthesize it artificially. As for example, rubber. Rubber is a natural product. As you are aware of that rubber plants are mostly cultivated in the Malaysia and those area. But now we are not dependent on the pure rubber. Whatever rubber we have, that is a synthetic rubber. Means after studying, after having the technique of this, now we have the understanding of the structure, and as we have understand the structure, what we have done? We have done that we can synthesize artificially. So look here, they want to explain that what is the importance of the chemistry and the biochemistry, and for that of the particular organic or inorganic compounds. If one were make a list biomolecules, such a list would be have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. Highlight karo. Basically, they are concentrating on the amino acid sugar. Look, there are thousands of type of the sugars. Glucose. Glucose is what? C6H12O6. No, only glucose is not this. Yes, glucose has 6 carbon, 12 hydrogen, 6 oxygen. Fructose also have same thing. C6H12O6. Galactose. Galactose also same thing. C6H12O6. Means when we are considering anyone, we have the very limited knowledge. So we are considering this, okay, glucose, sugar over. No, there are thousands of sugar. There are thousands of amino acids. So we always try to understand which kind of sugars and which kind of amino acids are present in cell. As you have studied in the nucleotide, pentose sugar, C5H10O5, or ribose sugar,
Same way, deoxyribose sugar, it is also one kind of pentose sugar with thousands of sugar, thousands of amino acid, thousands of fatty acid and other molecules are present in the living organism. If one were make a list of the biomolecules, such list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, etc. For reason that they are given in section 9.10 that we will study then after. वी कैन वो 9.10 में हमने देख लिया है कि क्या है वो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर और सब. वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स. बोलो हम ये बायोमोलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स. सो लुक, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स and these biomolecules are known as the metabolites. These biomolecules are known as the metabolites. What are they called? Metabolites. In animal tissue, one notices the presence of such categories of the compound source in figure 9.1. These are called primary metabolites. बोलो ये metabolites में animal tissue में है, बोलो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, which are found in animal tissue. If they are present in animal tissue, then confirm it is they are the primary metabolites. बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है. देखो स्टूडेंट इसके अंदर उसको समझते नहीं है और ऐसे ऐसे जाके ने कंफ्यूज होते हैं. कंफ्यूजन इज नॉट ड्यू टू दैट दे डू नॉट हैव द this understanding power, but they do not want try to understand this whole thing. If they are found these metabolites, why they are called the metabolites? The simple reason, in our living organism various processes, biochemical reaction take place, anabolic and catabolic. कौन से होते हैं? एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक. एनाबोलिक मीन्स कुछ ज्वाइन करना, कैटाबोलिक है ना डिस्ट्रक्ट करना. अब ये दोनों जो रिएक्शन होते हैं, दीज आर अवर बेसिक रिएक्शन इन द ह्यूमन बीइंग और सॉरी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. दीज आर कॉल्ड मेटाबोलिक. अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल यूज होते हैं उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स. सो दीज आर द रिएक्शंस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शन विच आर कंबाइनली नोन एज द व्हाट? क्या बोलेंगे उसको कंबाइनली? मेटाबॉलिक रिएक्शन. उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन. ने ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के जो भी कंपाउंड है, आइदर दे आर फॉर्म और दे आर यूज्ड, दे आर नोन एज द मेटाबोलाइट्स. बोले समझ में आया? मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? अब वो मेटाबोलाइट्स आइदर दे आर फॉर्म और दे आर द यूज्ड, दे आर द प्रोडक्ट और दे आर द रिएक्टेंट. फॉर्म यानी क्या हुआ? बना, मीन्स प्रोडक्ट. अगर जो यूज हुए तो यूज हुए, व्हाट डज इट मीन यूज? दे आर द रिएक्टेंट. इफ दे आर इन एनिमल टिश्यू देन दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. सिंपल, बट मगज में उसको बरोबर फिट करो. In animal tissue, one notices the presence of such a metabolite categorized of the in compounds shown in this figure. They are called primary metabolites. However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, बोलो अब इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो बोलो किस में प्लांट, फंगाई, फंगल मीन्स फंगाई, as well as microbial means microbe organism, microbe organism. as for example, हमने जो स्टडी करा है, बोलो माइक्रोबियल, क्या स्टडी करा है हमने माइक्रोबियल में? क्या कराएगा? प्रोटिस्टा.
प्रोटिस्टा भी अलग अलग होंगे, यूकेरियोट्स में आ गया, मोनेरा, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वो सब के अंदर होता है वो माइक्रोबियल। फंगाई में जो रिएक्शन होते हैं वो प्लांट में होते हैं, वो मीन्स प्लांट, फंगाई एंड माइक्रोबियल। These are, sorry, when they are analyzed plant, fungal or microbial cells, one would see thousands of compounds other than those called primary metabolites. एग्जाम्पल अल्केलॉइड्स। बोलो ये प्राइमरी यानी एनिमल में है, वो प्लांट में है तो उसको नहीं काउंट करने का, एनिमल में है वो फंगाई में है तो उसको काउंट नहीं करने का। इफ दे आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड ऑल्सो इन द प्लांट दे आर नॉट considered. अगर जो animal, if they are present in the animal and they are also in part of the microbials, then they are not considered. They should be either only in the plant or in the fungi or the microbial. में possible के plant में और fungi में दोनों में तो भी चलेगा, fungi microbial दोनों में is well and good. Plant and microbial it is considered, but they should not be present in animal cell. इफ दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल, फिर वो प्लांट में है कि नहीं कि माइक्रोबियल, वो नहीं सुनेगा। दे आर द प्रेजेंट इन एनिमल, दे आर द माइक्रोबियल। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल बट दे आर प्रेजेंट इन एनी अदर वन और मोर देन वन टाइप, व्हाट आर दोज? तो बोलो एग्जांपल्स आर गिवन। व्हाट आर द एग्जांपल्स? लुक, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द अल्केलॉइड्स। बोलो क्या आएगा वो? अल्केलॉइड्स। Then flavonoids, alkaloids, flavonoids, rubber. Definitely rubber we are getting from the plant but not from the animal. Essential oil, all essential oil. चलो ऐसे ही बोलो essential oils, antibiotics, various antibiotics, color pigment, scent, बोलो various scents, they are product of the plant. Scents, gums, spices, various species on only from the plant, they are not from our animal or any other thing. They are called secondary metabolites. बोलो उसको ने क्या बोलेंगे हम? उसको ने बोलेंगे secondary metabolites. Look, those biomolecules are called metabolites. अब वो मेटाबोलाइट्स किसको बोलते? तो हमको पता होना चाहिए कि लिविंग वन में एनाबोलिक कैटाबोलिक रिएक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के जो भी कंपाउंड है उसको मेटाबोलाइट्स। दिस मेटाबोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर ऑलवेज फाउंड इन एनिमल टिश्यू, बट other than animal tissue, plant, fungal, microbial, in any, if they are present, they are called as secondary metabolites. Example, alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, color pigments, scents, gums, spices, etc. While primary metabolites has identifiable functions and play नॉन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, हाईलाइट करो, दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट। बोलो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या है? दे हैव, बोलो क्या बोला है? वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो आइडेंटिफाइबल, यानी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, हमको पता चलता हैगा, आइडेंटिफाइबल। क्या है आइडेंटिफाइबल? फंक्शंस, आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले। अब वो आइडेंटिफाई हुआ, इन्हें पता चलेगा कि वो कौन से में प्ले करता होगा, पार्ट लेता होगा कौन से रिएक्शन में। एंड प्ले नॉन रोल, नॉन रोल है तो ही तो पता चला कि उसके अंदर वो आइडेंटिफाई हुआ नॉन रोल। ये नॉन प्ले नॉन रोल्स नहीं लिखा होता तो भी चलता, आइडेंटिफाई हुआ काय में? तो भाई रेस्पिरेशन में होता है, आइडेंटिफाई हुआ। डाइजेशन में आता है, आइडेंटिफाई हुआ। ओके, एनीवे, प्ले रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन प्ले रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस।
processes. We do not at the moment understand the role of function of all the secondary metabolites. बोलो, at the moment, we do not know all the functions of secondary metabolites. इन होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर से हमको रबर प्लांट में से रबर मिला, तो वो रबर उसके अंदर क्या फंक्शन करता है, स्टिल वी डोंट नो. Yes, we are getting the advantages of that rubber, but we don't know how it is useful for that particular plant. Metabolites in that organism, बोलो, in host organism. We do not have the at moment understand the role or function of the secondary metabolites in host. However, many of them are useful to human welfare. बोलो, ये डायरेक्टली ये कि they are useful in human welfare. यूजफुल इन ह्यूमन वेलफेयर, बोलो पता है ना कैसे, अभी तो मैंने अपने किया था. बोलो, दे आर यूजफुल इन द ह्यूमन वेलफेयर. एग्जाम्पल, रबर हमको पता है हमारे ह्यूमन में क्यों यूज है. ड्रग्स, स्पाइसेस, बोलो एग्जाम्पल. या अगर जो आपको ऊपर के एग्जाम्पल याद रह गए तो उसमें से आ जाएगा रबर, स्पाइसेस, सैंड्स. रबर, स्पाइसेस, सैंड्स बहुत है. इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स मीन्स अवर मेडिसिन. Scents and pigments, yes, pigments, various color pigments, as for example our turmeric giving yellow color. Yes, as well as turmeric is also useful as a antibiotics. For the color you can use beet. Take a beet little piece of the beet, squeeze it, बरोबर उसको स्क्वीज करो, सब उसके अंदर रेड कलर निकलेगा. रेड कलर का लिक्विड निकलता है, दैट इज द नेचुरल रेड कलर. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एनी स्वीट और एनीथिंग, वो आर्टिफिशियल रेड कलर लाने के बदले ये अपना डाल दो, अच्छा सा नेचुरल रेड कलर आ जाएगा. सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. वो आगे तुम स्टडी करोगे. इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस. बोलो, समझ में आया? So look, here what we are understanding, the various biomolecules. Here when we are understanding the biomolecules, those biomolecules which are metabolites. इसके पहले हमने प्राइमरी देख लिया कि एमिनो एसिड किसको बोलते हैं, फैट किसको बोलते हैं, वो सब हमने समझ लिया. चलो अब उसमें से हमको समझना है कि वो मेटाबोलाइट से कैसे फंक्शन करता है. फर्स्ट वी शुड अवेयर ऑफ दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स. दिस मेटाबोलाइट्स आर टू टाइप, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. बोलो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर ऑलवेज फाउंड इन एनिमल टिश्यू. अदर देन एनिमल टिश्यू, in plant, fungal, microbial, in any living organism cell, if they are present, they are called as secondary metabolites. As for example, alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, बोलो ये सब है. एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सैंड्स, गम, स्पाइसेस एक्सेट्रा. Primary metabolites are already identifiable function and play known roles in the normal physiological process. But at the moment, for the secondary metabolite, we do not know all the function. थोड़े के फंक्शन पता भी है, थोड़े के नहीं भी पता है. Secondary metabolites in host useful. they are these secondary metabolites are होस्ट में क्या करता है वो पता नहीं है, बट हमारे लिए बहुत यूजफुल है. दे आर यूजफुल इन ह्यूमन वेलफेयर. दिस दे आर ऑल्सो हैव द इम्पोर्टेंस इन इकोलॉजिकल वेलफेयर, इकोलॉजिकल बैलेंस. ओके, तो देखो तुमको क्या करना हैगा, पहले नोट में ये वीडियो को पॉज करनी है,
प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट पे से लिख दो एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस टुगेदर नोन एज द मेटाबोलिक। वो मेटाबॉलिक्स के रिएक्शन के जो मॉलिक्यूल्स है, दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द, यहाँ पे लिख देंगे उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। फिर नीचे यू विल डिवाइड डॉट बाय मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स। कौन से यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं? ओनली मेटाबोलाइट, दूसरे भी है वो नहीं। चलो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डिफरेंस लिख लो, पोज करके लिखो, अच्छे से लिखो। दिस ऑल आर आस्क्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता था बट आंसर लिखते नहीं आया। साइंस में ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, सर उसको आता है सब बट वो लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाती है वो गर्ल, वो बॉय? दैट इज द रीज़न, बिकॉज उन्होंने समझा नहीं है, रट्टा लगाया है। एक एक वर्ड अच्छे से आना चाहिए। सो लुक, वी हैव डन अप टू हियर, नाउ लेट्स वी मूव टू बायोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। सॉरी, कौन से मोलिक्यूल्स? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। मिस टॉपिक नंबर 9.3, 9 चैप्टर, टॉपिक नंबर 3, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। Look, these biomacromolecules, there is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. एसिड सोल्यूबल पूल। अब ये आया क्वेश्चन, सर ये एसिड सोल्यूबल पूल क्या है? तो गो टू द स्टार्टिंग सेकंड पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर नंबर 9, सेम चैप्टर, पेज नंबर 142। How to analyze chemical composition 9.1. We can continue asking the same way, what type of the organic compounds are found in living organisms. हमने ये किया था। How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform chemical analysis. क्या करने का? Chemical analysis. We can take any living tissue, a vegetable or the piece of a liver, and grind it in the trichloroacetic acid. बोलो किस में ग्राइंड करने का, किससे मिक्स करें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। यूजिंग ए मोटर एंड पेस्टल वी ऑब्टेन्ड अ थिक स्लरी। बरोबर उसको ऐसे रब कर करके वो करने का, उससे थिक स्लरी मिलेगी। If we were to strain this through cheesecloth or a cotton, we would obtain two fractions. One is called the filtrate or more technically the acid soluble pool. वो जो हमने किया उसमें से उसको बोले चीज क्लॉथ या तो कॉटन में से रख के उसको फिल्टर करेंगे, तो नीचे जो मिलेगा वो एसिड सोल्यूबल fractions. Scientists have found thousands of, or sorry, more technically the acid soluble, and the second dictate और द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। जो ऊपर है क्या चीज क्लॉथ पे, उसको ना बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड द थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सोल्यूबल पूल एज वेल एज नॉन एसिड मींस नॉन सोल्यूबल पूल। आया समझ में? अब तो उसी का यूज करना है कि 9.3 पेज नंबर 146। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, जो सोल्यूबल होके आ गया। तो हम लोग thousands of compounds are present in acid soluble pool. समझ में आता है क्या? They are the main four: protein, nucleic acid, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। बोलो कौन से 4? प्रोटीन। ये सबको हमको अभी समझने का हैगा, डोंट कम इन टेंशन अभी इन दिस चैप्टर। न्यूक्लिक एसिड, देन पॉलीसेकेराइड्स, एंड लिपिड्स एक्सेट्रा।
have a molecular weights in the range of 10,000 Dalton and above. कितना molecular weight है? 10,000 Dalton and above. molecular weight का जो यूनिट है डाल्टन, वो केमिस्ट्री पार्ट में आएगा, अभी नहीं बाद में आएगा, बट मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करने वाला बिकॉज इट टेक्स लिटल टाइम एंड वी हैव टू डिस्कस बायोलॉजी ओनली. यू शुड अवेयर ऑफ दैट मोलिकुलर वेट का जो यूनिट है डाल्टन है. मोलिकुलर वेट मोर देन मीन्स अबव 10,000 डाल्टन DA. Dalton and above. For these these classes of the compounds with the exception of the lipids means exception. लिपिड मीन्स लिपिड का कम है, वो एक्सेप्शन है. तो फिर उसका कम है, फिर इसमें क्यों कंसीडर करा? वही तो ये चैप्टर में, ये पैराग्राफ में, ये टॉपिक में हमको समझने का है. For this very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in living organism, are of two types. One, those which have the molecular weight less than 1,000 Dalton, and other usually referred to as the micromolecules or the simple biomolecules. तो बोलो, depending on this, we have the two type of the molecules, micromolecule and second are known as the macromolecules. बोले कौन से होंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. Chemical compounds found in living organism of two types. One, those which have the molecular weight less than 1,000 Dalton. बोलो इसमें अपने कितना आएगा? molecular weight less than 1,000 Dalton. बोलो यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 और above Dalton molecular weight. One, those have the molecular weight less than 1,000 Dalton are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fractions are called macromolecules or the biomacromolecules. बोलो अब ये जो है कुछ लोचा, यस माइक्रो उधर आएगा और मैक्रो ही इधर आएगा. मैक्रोमोलिक्यूल्स यस एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स. सॉरी, micromolecules. बोलो these are found in where? They are found in the acid insoluble fraction, and these are found in acid soluble fraction. तुम खुद समझ सकते हो. बोलो कि वो एसिड सोल्यूबल है. सोल्यूबल कब हुआ? छोटा छोटा था. माइक्रोमोलिक्यूल्स. ये इनसोल्यूबल, वो बड़ा बड़ा था, तो इनसोल्यूबल नहीं हुआ, वो ऐसे ही रह गया. Chemical compounds found in living organisms, they are also known as the biomacromolecules. बोलो इसको अपने क्या बोलते हैं? they are also known as biomacromolecules. जब बोलो इसको अपने क्या अपने बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स. क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स. इफ आई टेल यू बायोमोलिक्यूल्स, तो तुमको क्लियर हो जाना चाहिए कि आई एम टेलिंग अबाउट द माइक्रोमोलिक्यूल्स. But I call it is a biomacromolecule, so it is confirmed that I am telling about the macromolecules. बोलो biomolecules means micromolecules. Molecular weight less than 1,000 Dalton.
acid soluble, they are found in acid soluble fraction. Macromolecules known as biomacromolecules, they are found in acid insoluble fraction, and they have the molecular weight 10,000 Dalton and above. The molecules in the insoluble fraction with the exception of the lipids are the polymer substances. बोलो, except lipids all are polymers. मीन्स कौन से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड. प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड. They are the polymers. Polymers means same molecule. If repeated numbers of time, they are called the polysaccharides. X, for example, glucose 6,6,8,12O6. This one molecule of glucose. अगर जो सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो उसको ना बोलेंगे मोनोमर. If two molecules of the glucose form the bond, कौन सा बॉन्ड ने कैसे आया वो बाद में हम देखेंगे. दिस इज कॉल्ड डाइमर, मिस माल्टोज. मीन्स ऐसे बोलो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब C6H12O6 नहीं लिखता, इज रिपीटेडली ज्वाइन, देन दे आर कॉल्ड द पॉलीमर्स. तो लिपिड जो है, लिपिड में ऐसा नहीं है. वी हैव डन लिपिड इन लास्ट वीडियो. आइदर दे आर ऑफ द फैटी एसिड CH2 बस वही है. कितने बोल रहे सर CH2 तो है ना. अरे CH2 तो बेसिक है, पूरा के पूरा यूनिट नहीं रिपीट होता है CH2. जैसे यहाँ C6H12O6 पूरा के पूरा रिपीट होता है. ओके, तो देखो वो क्या आएगा, वो सब पॉलीमर है. लिपिड पॉलीमर नहीं है. लिपिड तो क्या है, आइदर फैटी एसिड, आइदर ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन और प्रोडक्ट ऑफ दिस बोथ रिएक्टेंट. कौन से, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन और फैटी एसिड के रिएक्शन होने से मिला हुआ प्रोडक्ट है. रिपीट नहीं है कि एक के ने लिपिड का बेसिक यूनिट आया, फिर वापस दूसरा आया, फिर वापस तीसरा, ऐसा नहीं. शुगर, ग्लूकोज में तो एक शुगर मॉलिक्यूल आया, फिर वापस दूसरा शुगर आया, फिर वो ऐसे लॉन्ग चेन बनी, ऐसा नहीं. वन लिपिड. ओके, दैट्स ऑल. The molecules are insoluble fraction with the exception of the lipids are the polymer substances. Then why do lipids, those molecular weight do not exceed 800 Dalton? हाईलाइट करो, ये क्वेश्चन आता हैगा. लिपिड molecular weight not exceed 800 डाल्टन. अगर जो उसका 800 डाल्टन नहीं है तो वो माइक्रोमोलिक्यूल्स बनना चाहिए, बट इट इज कंसिडर एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स. व्हाई? यही तो आंसर हमको फाइंड करना है. कम अंडर द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. बोलो ये नंबर 1 क्या है, वो कैसा बनता है, एसिड इनसोल्यूबल. माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सोल्यूबल बनता है. ये इसका मोलिकुलर वेट कम है बट वो एसिड इनसोल्यूबल बना है. एसिड इनसोल्यूबल यहाँ पे है. वन रीजन, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, यानी मैक्रोमोलिकुलर के साथ में आ गया. लिपिड्स आर इन दी स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स, स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स एंड द प्रेजेंट only as such but also arranged into structure like cell membrane and the other membranes. बोलो क्या आएगा, lipids are the small molecular weight compounds and are present not only as, मैंने पहले जानबूझ के नोट जाने दिया था, हाईलाइट करो, not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane. Note करो, means they are not present as but they are present as क्या, सेल मेम्ब्रेन. पूरा सेल मेम्ब्रेन ही लिपिड है, बाइलेयर लिपिड. याद करो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल.
cell membrane and other membrane. What are these other membranes? The membrane of the mitochondria, Golgi body, etc. When we grind a tissue, डेफिनेटली इसको अलग करने के लिए हमको ग्राइंड करना ही पड़ेगा ट्राइक्लोरोसिलिक एसिड में. तो बोलो क्या था, व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्टर्ब कर देते उसको. द सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसीस. तो बोलो क्या होता है, व्हेन वी ग्राइंड टिश्यू और सेल, ग्राइंड टिश्यू मीन्स सेल्स, वी आर डिस्टर्बिंग कर देते. किसको डिस्टर्बिंग कर देते हैं? बोलो किसको नहीं करते हैं? सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन. पूरा के पूरा मेम्ब्रेन नहीं रहता, उसके छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं. पूरा लिपिड था उसके छोटे छोटे पार्ट बने. जैसे कि पूरी बड़ी सारी बॉल थी, जब बहुत बड़ी ऐसी कंपाउंड वाले कुछ होती है तो उसको तोड़ते तो क्या होता है, पूरी एक एक सिंपल ब्रिक्स नहीं अलग होती, थोड़े थोड़े उसके पोर्शन अलग हो जाते हैं. विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल. और ये फिर जो फ्रैक्शन बनते हैं दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल. फिर वो वाटर सोल्यूबल भी होते नहीं है. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool. यानी रियल लिपिड तो छोटा है, बट उसके जो फ्रैक्शन मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, एंड दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स. यानी बोलो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो मिला बेसिक, एक की ब्रिक पूरी, मैंने वॉल का एग्जाम्पल बोला, एक ब्रिक तो छोटी है, उसका वेट कम है, बट जब हम तोड़ते हैं तो बड़ी बड़ी इतनी दीवार, इतने वॉल के पीसेस मिलते हैं, तो उसमें नंबर्स ऑफ होते हैं. ऐसा ही लिपिड में, लिपिड करके पॉलीमर लिपिड नहीं बनाए, सब लिपिड अलग है, बट जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके बहुत सारे यूनिट एक साथ में होंगे, सेपरेट है, बट वो एक न दूसरे से कनेक्टेड रहते, छूटते नहीं पड़ते हैं. तो क्या होता है, वो वेसिकल्स के फॉर्म में आते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, एंड दे रिमेन इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, एंड ऑल्सो रिमेन इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. Hence the macromolecules fraction lipids are not strictly macromolecular. अब ऐसा देखने जाएंगे तो बोलो इतना है ना, पूरा वो वॉल का जैसे पीस मिला, उसमें एक एक ब्रिक तो अलग है, तो ये सब ने देखने जाएंगे तो वो माइक्रोमोलिक्यूल से, लिपिड गिन लो वो माइक्रोमोलिक्यूल से, बट पूरा हमको एक एक ब्रिक अलग नहीं मिलती है, पूरा मिलता है. उसके लिए उसका हम वेट ज़्यादा लगता है, बेसिकली उसका वेट कम हैगा. The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition. अब बोलो यहाँ से हम अपने देखेंगे तो बोलो क्या है, एसिड सोल्यूबल मीन्स माइक्रोप्लाज्म, माइक्रोमोलिक्यूल्स ये बीच में आता है, वो लिपिड को क्यों, उसका मोलिकुलर वेट कम है, फिर भी क्या गिना, माइक्रो एंड मैक्रो. तो अब देखो ये एसिड सोल्यूबल मीन्स कौन सा हुआ, माइक्रो. तो देखो द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन. बोलो कौन हैगा, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन. माइक्रो में क्या है, साइटोप्लाज्मिक. जब डिफरेंस लिखते तो बीच में ये आ जाता है, ये भी एक आंसर है, बट डिफरेंस ऐसा तुमको आना चाहिए. जब अभी तुम लिखोगे तो डिफरेंस में क्या करने का, ये लिखने का, इसको आने जाने देने का, ये साइड के पॉइंट लिखने के, और एंड में ये अलग से लिखने का. बट जब मैं रियल क्लास में कराता हूँ तो वैसे ही कराता हूँ, यहाँ पे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट फिर यहाँ पे तो क्या वीडियो लेक्चर में कंफ्यूज हो जाते कि सर ने क्या करा दिया. एसिड सोल्यूबल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट. द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स. बोलो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आता हैगा, साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, एमओ एंड ऑर्गेनल्स.
The macromolecules form the cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of living tissue or organism. Together जब हम दोनों को कंसीडर कर लेंगे तो फिर क्या बनेगा? नॉट ओनली माइक्रो और मैक्रो, बोथ टूगेदर दे फॉर्म द कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू. बोलो दोनों का कंबाइन क्या हैगा? वो किसका हैगा? लिविंग टिश्यू बनाता है. कोई एक होगा तो लिविंग टिश्यू लिविंग सेल नहीं बनेगा, दोनों होंगे तो ही लिविंग सेल बनेगा. In summary, if we represent the chemical composition of the living tissue from abundance point of the view, the arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in living organism. देखो वहीं टेबल बाजू पे है, टेबल नंबर 140 सॉरी ऑन पेज नंबर 147, टेबल नंबर 9.4. What are the component? Water. In average cell, cellular mass में 70 to 90% vary. In our skin it is somewhere about 70 to 75 80% जैसा आएगा. बट बोलो क्या आएगा? जब बॉन सेल में आएगा तो कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स. प्रोटीन्स 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस 1% ओनली. ये पूरा टेबल तुमको अच्छे से आना चाहिए. एज वेल एज देखो यहाँ पे टेबल नंबर 9.3 ऑन पेज नंबर 146. पिगमेंट्स. व्हाट आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? बोले सेकेंडरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अवर ह्यूमन वेलफेयर एज वेल एज इकोलॉजिक. बोलो पिगमेंट्स कौन से कैरेटिनॉइड्स याद करो, क्लोरोप्लास्ट में आया था क्लोरोफिल के साथ. एंथ्रोसाइनिन्स, देन अल्कलॉइड्स मॉर्फिन, कोडिन. ये भी है वन टाइप ऑफ ड्रग्स मेडिसिन. टर्पेनोइड्स मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स. इसेंशियल ऑयल्स लेमन ग्रास ऑयल, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है फिर वो ग्राउंडनट ऑयल ने सब नहीं करने का. टॉक्सिन्स एब्रिन एंड रिसिन. लेक्टिन्स कोनाकेवेनाइल ए. ड्रग्स विनब्लास्टिन एंड कुरकुरमिन. पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर गम सेल्यूलोज. ये दोनों टेबल तुमके टिप ऑफ टंग होने चाहिए बिकॉज फ्रॉम दिस टेबल दे हैव आस्क्ड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इन नीट एग्जाम. एज वेल एज बोलो ये माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस कवर होना चाहिए. माइक्रो मोलिकुलर वेट लेस देन 1 to 1000 डाल्टन. मैक्रो 10,000 और अबव डाल्टन. मैक्रो एसिड insoluble, माइक्रो एसिड soluble fraction. Macro known as the macromolecules, micro are known as biomolecules. Except lipids, all are the polymers, means proteins, nucleic acid, polysaccharides. Here dash कर देने का, not polymers form. चलो macro are cytoplasm and organelles components. Micro cytoplasmic composition है. And finally both together form the living tissue or cell. बीच में यह आता है कि लिपिड मोलिकुलर वेट इज नॉट एक्सीडिंग 800 डाल्टन, स्टिल इट इज कंसीडर एज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये अलग पॉइंट हैगा, हमारी बुक में बीच में उसको डाल दिया है. तो द रीजन इट इज अ एसिड इनसोल्यूबल मीन्स टुवर्ड्स अ मैक्रो. दे आर नॉट प्रेजेंट एज दे आर बट दे आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स. वो मेम्ब्रेन का बना है, जैसे पूरी वॉल बनती है मेम्ब्रेन के, पहले वॉल देख लो तो ब्रिक्स मीन्स लिपिड. When we ground tissue cells disrupting and cell membrane and वो सब टूट गया, not water soluble form बनता हैगा, वो वेसिकल्स रहता हैगा. एंड along with दो वो वेसिकल ऐसे अपने बनते हैं कि दे कैन नॉट बी फिल्टर फ्रॉम दैट, सो एसिड इनसोल्यूबल फॉर्म में रह जाता हैगा. वो एसिड इनसोल्यूबल फॉर्म में ये रीज़न से रह जाता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कंसिडर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट बाय वेट इट इज़ नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल्स. वह इतना. इससे आगे का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. बस बिफोर इट तुमको ये डिफरेंस ये और ये दोनों डिफरेंस लिखना है और इसके नीचे ये अपने रीज़न लिखना है. ओके, बेस्ट ऑफ लक.